भारत के 2.5 करोड़ से अधिक अग्रवाल बंधुओं का अग्रवाल्स एवरीवेयर के इस नए एपिसोड में खूब खूब स्वागत है। और हम शुरुआत करेंगे, आज से 10-12 साल पुराना वीडियो है ये कुछ अग्रवाल्स जो हैं वहाँ पे यूएस में कुछ पिकनिक बनाने गए हैं, उसके ऊपर ये वीडियो है। वीडियो तो बहुत लंबा था, थोड़ा कटिल करके छोटा सा आपको दिखा रहे हैं। आपको आइडिया आएगा कि अग्रवाल जो हैं किस तरह सब जगह बसे हुए हैं और यूएस में तो बहुत ज़्यादा हैं। चलिए देखते हैं। हम अग्रवाल शायद अगर बिजनेस में आगे हैं तो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत आगे हैं। इंदौर में एक स्कूल खुला है, अग्रवाल पब्लिक स्कूल। उसका एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाते हैं। और मैं तो कहूँगा कि जगह जगह जहाँ भी पॉसिबल हो अच्छे अच्छे स्कूल अग्रवाल लोग खोलें, क्योंकि आज की तारीख में अच्छे एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। और जितना अच्छा काम अग्रवाल कर सकते हैं शायद ही कोई कर सकता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस वीडियो। और उससे पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूँ
कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। I look forward to waking up every morning. A bright, energetic day welcomes me with open arms. I truly believe that each day I accomplish something, learn something, and cheers to that. In school, I see all my classmates are equally eager to begin the day with same faith and encouragement. This amazes me every day. How magical is our learning arena? May I come in, ma'am? Agrawal Public School classrooms are spacious enough to welcome new ideas and aspirations. The educators are well trained and students friendly. No student is afraid to express their doubts or confusion. This excellent study environment is supported by modern technology, which adds extra miles to students' growth. Join me to the world of infinite possibilities. Today, we have access to every information at our fingertips. The pace of world is just so quick. I also look forward to exposure and opportunities to match the competition. I'm confident that I'll fly high and higher. I just want my runway to fly and grow manifold. Fly with me beyond the sky. I believe that to keep moving ahead, my mind, body, and efforts must be in sync. My school always makes sure to provide me with motivation and support. When I look around, I realize that the days of having only a few career options are long gone. Opportunities are infinite. You just have to address it. I am confident that I will become whatever I want to be. I am my own master in achieving my goals. अगला वीडियो भी काफ़ी पुराना है। यूट्यूब पे समथिंग लाइक गो ग्लोबल एक चैनल है, और ये जो आप देखेंगे वीडियो, कोई जनाब जो हैं वो गाड़ी ड्राइव करते करते समझा रहे हैं कि कैसी हमारी ये कम्युनिटी का बड़ा कम्युनिटी है। चलिए सुनते हैं, अच्छा लगेगा आपको। Agar Sen is the king of all the Agarwals in India. And in our community, he basically belongs from Haryana, Agra, one village. So they started a system in Agarwals wherein any Agarwal migrating to that village, each and every house, they will donate one brick and one coin. Okay. This is just to make house from the brick what you get. So there are about 200 villages, you get 200 bricks. So with the 200 bricks, you make your own house. One. They give 1 rupee each, so you get 200 rupees. So you can start trade. So your business starts immediately. So you do not beg. That's how this Agarwal community is grown from that place to all over globe today. Wow. So 90% of Agarwal community, if you see, are businessmen and industrialists. Very less people you will find doing service and other thing. Maybe recently the children have taken the IT and other professions, so they have become non-businessmen. So 99% people are businessmen in Agarwal community. And Agarwal community is the largest and biggest industrialist Yes. in India Yes. and around the world. Yeah.
if it's in Indian. In Indian, yes, that's right. Thank you so much. And what do you do, sir? I am into iron and steel trade. Mhm. Last about 35 years. 30 years, sorry, not 35 years. 30 years. That's right. And I do run charitable school in Chennai. Yeah. I have a pilgrimage center made in Rameshwaram. Yeah. Any of people going to Rameshwaram, they have a place to stay. Wow. And you have recently added a portal to A your steel portal, Yeah, yes. tell us about that. It's again to connect global buyers and sellers, wherein they have an opportunity to interact with international market. There could be a buyer of 10 rupees, there could be a buyer of 10 crores. If they can negotiate a deal through my portal, I feel happy about it. Right. Great. Is this the only type of steel portal? Yes, if you talk about steel portal, in worldwide there are steel portal providing only news, or maybe one or two portal have started because of our portal, wherein they have started trading of buying and selling of steel products. But in our steel portal, we have you can post your requirement for steel product, the services rendered in steel industry. You may be a fabricator looking out for fabricator. Yes, you can post your requirement. It could be you want to buy or sell any plant and machinery connected with steel. It could be recruitment. You want to have a job or there's any opening you can find. There's an auction also, wherein if you have any surplus stocks available, you can upload your videos and pictures where people need not go and inspect all over. We are made in such a way where material is lying in Singapore. I need not travel to Singapore to inspect. You can just upload the picture, video online. People can see. They can offer the prices what they require, and if the seller is agreeable, he can sell it to them. Fantastic. We have been media partner for a lot of events globally. You visit steelneeds.com. I'm sure you'll be happy about it. Thank you so much. Thank you. अगला वीडियो है अग्रवाह की कहानी। अभी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो अग्रवाह के बारे में काफ़ी अलग अलग वर्जन्स हैं, लेकिन अग्रवाह वहाँ पे है और अग्रवालों की उत्पत्ति वहाँ से हुई ऐसा कहा जाता है। आप भी कभी दर्शन वहाँ पे जाइए, चक्कर लगाइए, दर्शन करिए। तो सुनते हैं अग्रवाह की कहानी। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी रिचुअल्स में आपका स्वागत है। पुण्य भूमि अग्रोहा। अग्रोहा अग्रवाल बंधुओं का पुण्य तीर्थ स्थल है। यहाँ के रजकण को प्रत्येक अग्रवाल अपने मस्तक पर धारण कर धन्य हो जाता है। यही वह स्थल है जहाँ से हजारों वर्ष पूर्व अग्रवालों के पूर्वज निकलकर भारतवर्ष के अनेक भागों में फैले और व्यवस्थित हुए हैं। भारत के हरियाणा प्रदेश में एक जनपद है हिसार। इसके उत्तर पश्चिम में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली सिरसा रोड पर एक रमणीय ग्राम स्थित है अग्रोहा। निसंदेह किसी समय यह बड़ा ही समृद्धशाली नगर था। कहा जाता है कि वैश्य अग्रवाल जाति के संस्थापक राजा अग्रसेन ने इस नगर की नींव रखी थी। यह बात लगभग 2000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। इस गांव के निकट ही एक पुराना खेड़ा है। वहां आज भी नष्ट हुए विशाल नगर के भग्नावशेष पड़े हुए हैं। खेड़ा के ऊपर एक किला बना हुआ है। उस किले को देखते ही नानुमल दीवान की स्मृति सजीव हो उठती है, जिन्होंने इस किले का निर्माण कराया था। एक कहानी के अनुसार अग्रोहा में ध्रुवनाथ नामक सन्यासी ने अपने शिष्य कीर्तिनाथ के साथ आकर समाधि लगा ली। उनका शिष्य कीर्तिनाथ वहीं धूनी लगाता रहा तथा भिक्षा मांगकर निर्वाह करता रहा। कुछ दिनों के बाद कीर्तिनाथ को घरों से भिक्षा मिलनी बंद हो गई, अतः वह जंगल से लकड़ियां लाता, धूनी जलाता और भूखा ही सो जाता। एक कुम्हारन को उस पर दया आ गई। उसने कीर्तिनाथ को भरपेट भोजन कराया और लकड़ी काटने के लिए उसे एक कुल्हाड़ी दी। अब कीर्तिनाथ लकड़ी काटकर और उसे बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। इस प्रकार 6 महीने का समय बीत गया। एक दिन बाबा ध्रुवनाथ ने आंखें खोली और कीर्तिनाथ से समाचार पूछा। कीर्तिनाथ ने बताया कि यहाँ के लोग साधु सन्यासियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, यहाँ तक कि कोई भिक्षा भी नहीं देता, बल्कि ये लोग धमकाते हैं। यह सुनकर बाबा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने शाप दे दिया कि यह नगर 24 घंटे में जलकर राख हो जाएगा। और बाबा अपने शिष्य कीर्तिनाथ को साथ लेकर किसी दूसरे स्थान की ओर चल दिए। चलते समय कीर्तिनाथ ने बाबा से बताया कि यहाँ एक कुम्हारिन है जिसने मेरी मदद की थी। बाबा ने आदेश दिया कि उसे सूचित कर दो। बाबा से आदेश लेकर कीर्तिनाथ कुम्हारिन के पास गया और उससे बोला कि हमारे गुरु ने इस नगर को शाप दिया है कि
यह नगर 24 घंटे के अंदर जलकर नष्ट हो जाएगा। तुम सब परिवार यहाँ से तुरंत निकल जाओ। यह कहकर कीर्तिनाथ बाबा के पास लौट आया। कीर्तिनाथ की बात पर विश्वास करके कुम्हारिन का परिवार नगर छोड़कर निकल पड़ा। लोगों ने पूछा तो कुम्हारिन ने सारा वृतांत लोगों को कह सुनाया। जंगल की आग की तरह सारे नगर में यह खबर फैल गई, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया। अचानक भयंकर आंधी चलनी शुरू हो गई। देखते ही देखते बाबा की धुनी की राख से अंगारे बन भरकर उड़ने लगे और 24 घंटे के अंदर ही नगर आग की लपटों की चपेट में आ गया। अग्रोहा जलकर भस्म हो गया। ऐसा एक नहीं बल्कि अनेक कहानियां अग्रोहा की धार्मिक पृष्ठभूमि के साथ जुड़ी हुई है। तभी से अग्रोहा तीर्थ स्थल बन गया। वैभवशाली खंडहरों के पास आज भी एक फाख्तानुमा ग्राम है अग्रोहा। यहाँ की आबादी लगभग 2000 है। अग्रोहा में एक धर्मशाला के अंदर औघड़दानी भोले बाबा का एक सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। यहाँ दूर दूर से भक्त आकर बम बम भोले, दानी हो बड़े तुम, शिव शंकर का संवेद पाठ तो करते ही हैं, साथ ही ओम नमः शिवाय मूल मंत्र का जप भी करते हैं ताकि शिव प्रसन्न हो। इस शिव मंदिर के एक भाग में महाराजा अग्रसेन की एक सुंदर सी संगमरमर की प्रतिमा भी स्थापित है। शिव मंदिर के अतिरिक्त शिला की समाधि, रिसालू टिब्बा, लखी तालाब एवं अन्य सतियों के मंदिर दर्शनीय हैं। अब एक बहुत ही सुंदर माता वैष्णो देवी की गुफा बनाई गई है जो बेहद दर्शनीय है। इन सभी दर्शनीय स्थलों की अपनी अलग अलग कहानी है, जिसके कारण इन सब का निर्माण हो सका। और हम कोशिश करते हैं कि हर एपिसोड में कोई लीडिंग अग्रवाल पर्सनालिटी के बारे में आपको कुछ दिखाएं। अब वेदांता वाले अनिल अग्रवाल का नाम तो आपने सबने खूब सुना है। ये कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ दिनों से उनका नाम थोड़ा सा पब्लिक में इस तरह से भी आया है कि उन पर डेप्थ काफ़ी भारी है। लेट्स होप एवरीथिंग गोज़ वेल। और चलिए वीडियो देखते हैं। मिस्टर अनिल अग्रवाल ऑफ वेदांता ग्रुप। Agarwal ji, did anybody stop you ke business? How can you talk about business? And it's a big bad world. क्या करोगे? कहाँ से आएंगे पैसे? Because you're talking about trains and how you got into the trains through the windows. बिना टिकट के जाते थे? नहीं, टिकट उस समय पता नहीं, लेकिन ये बात सही है कि ट्रेनें बहुत जाम रहती थी। और ये बट आपने जैसे पूछा, हम लोग जब इंडिपेंडेंस हुई तो देश को आगे बढ़ना था और एंटरप्रेन्योर नहीं थे। टाटा बिरला दो ही नाम था जो कि इंडस्ट्री में थे, इसके अलावा कोई नाम नहीं था। और उस समय गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा और वो बोलते थे ये हमारे टेम्पल है। आप ऑयल, स्टील, कॉपर, पोर्ट, एनीथिंग यू टॉक अबाउट, 300-400 उन्होंने इंडस्ट्रियां लगाई। वो हमारे देश को डिफरेंट लेवल पे ले गए। वो एरा खत्म हो गया। वो जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे, गवर्नमेंट रियलाइज कर रही है, उसको फास्ट रियलाइज करना है कि हमारा हिंदुस्तान ये एंटरप्रेन्योर की वजह से हो रहा है। एंटरप्रेन्योर इतने जबरदस्त हो गए हैं कि अमेरिका से आगे लेके जाएंगे हमारी कंट्री को, क्योंकि वो दैट्स अ प्लेस ऑफ एंटरप्रेन्योर। हमारी कंट्री प्लेस ऑफ एंटरप्रेन्योर है। हमारे यहाँ एक फायदा है, हम संस्कारी हैं, हमारे यहाँ संस्कार हैं, हमारे यहाँ वैल्यू सिस्टम है। हम अपने माँ बाप के चरण छूते हैं, हम अपने सोसाइटी की कदर करते हैं। वो जो तड़का लग रहा है, जो कि अमेरिका में तड़का नहीं है, वो हमें बहुत दूर तक लेके जाएगा। You think so? Was it very difficult for you in your time? बहुत डिफिकल्ट तो था ही, लेकिन जब आदमी सर पे कफन बांध लेता है तो कुछ भी कर गुजरता है, क्योंकि कुछ खोने को था ही नहीं। झूठ बोलने के अलावा कुछ जानते ही नहीं थे। सबसे छोटा झूठ कौन सा बोला और सबसे बड़ा झूठ कौन सा? जब हमारी शादी हो रही थी तो हमारी वाइफ को मैंने सपने दिखाए कि हमारे पास बम्बई में बहुत बड़े घर हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। मैं बहुत ऑर्डिनरी था और मेरे को शादी करने की बहुत इच्छा थी। मैंने कहा कि हमारा घर इतना बड़ा है, हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं। जब उसने वहां जाके देखा कि मैं 300 स्क्वायर फीट के फ्लैट में रहता हूं,
और गाड़ी के नाम में एक फिएट जो भी मैं बिहार से ले गया था वो है, तो ये झूठ उसको जरूर बोला था। ये सबसे बड़ा झूठ था।